اور شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کریں گے۔ نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی بھی موجود تھے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ آج ان کا انتخاب کیا گیا اور اب سے کچھ دیر پہلے ہی شہباز شریف نے عہدے اور رازداری کا حلف اٹھا لیا ہے۔ شہباز شریف جو اپوزیشن میں سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ تھے، وہ اب پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ میں محمد شہباز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد ایوان میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ حق کی جیت اور باطل کو شکست ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگر بیرونی سازش کے تحت عمران خان حکومت کو بے دخل کرنے کا ذرہ برابر بھی ثبوت ملا تو میں وزیراعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت میں ملک قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا، معیشت کا برا حال ہے، لیکن اب ہم ملک کو پھر سے ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے انتھک کوشش کریں گے۔ وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور ہمیں اس میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے۔ اور میں آج جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے اور بلا خوف تردید ان قائدین کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر جناب اسپیکر اگر ایون ان آئیوٹا آف اینی شیڈ آف ایویڈنس خدا نخواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے یا خدا نخواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے، جس طرح کے فورن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے، یہ اگر خدا نخواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ایک سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا جناب اسپیکر۔ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ ایک بار پھر بدل چکی ہے۔ سب کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر کون ہے شہباز شریف؟ تو یہ رپورٹ دیکھیے۔ یہ اگر خدا نخواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے کہ میں ایک سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا جناب اسپیکر۔
वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहने वाले मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को सियासत का काफ़ी तजुर्बा है। वो कई साल इक़्तिसादी और सियासी तौर पर ताकतवर सूबे पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं। वो नवाज शरीफ की नाअहली से मुताल्लिक़ अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बने थे। 70 साला शहबाज शरीफ को विरासत में अपने खानदान की स्टील मिल मिली थी और पहली मरतबा 1988 में वो सूबाई इंतखाबात में कामयाब हुए थे। पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर इन्होंने कई बड़े तामीराती मंसूबे मुकम्मल किए। लाहौर में पहली मेट्रो बस सर्विस भी इन्होंने ही मुतारिफ कराई थी। लेकिन इनके नाक़िदीन का कहना है कि इन्होंने पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे में सेहत, ज़राई इस्लाहात और दीगर शोबों में बेहतरी के लिए कोई खास इक़दामात नहीं किए थे। शहबाज शरीफ कारोबारी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया। अमली सियासत में उनका करियर शानदार है। शहबाज शरीफ 1985 में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर बने। बड़े भाई नवाज शरीफ की पैरवी करते हुए अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। शहबाज शरीफ पहली मरतबा 1988 में पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 1990 से 1993 तक कौमी असम्बली के रुकन रहे। 1993 में पंजाब असम्बली के रुकन बने। 1996 तक सूबाई अपोजिशन लीडर रहे। 1997 में तीसरी मरतबा पंजाब असम्बली के रुकन बने और वज़ीर आला मुंतखब हुए। ये असम्बली 1999 में तहलील हो गई। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए। बाद में उन्हें जिला वतनी का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ 2008 में चौथी मरतबा बिला मुकाबला पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 8 जून 2008 से 26 मार्च 2013 तक दूसरी मरतबा वज़ीर आला पंजाब खिदमात अंजाम देते रहे। मई 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भारी मैंडेट के साथ फिर इख्तिदार में आई। शहबाज शरीफ 2018 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और इमरान खान के मुकाबले में वज़ीर आज़म का इंतखाब लड़ा। इमरान खान 176 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और शहबाज शरीफ को 96 वोट मिले। इसके बाद शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद हुए। एक मुतहरिक रहनुमा और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत अपनी पहचान रखते हैं। इन्हें इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ारत उज़्मा के लिए मुंतखब किया गया है। अपनी कई शादियों की वजह से स्कैंडल्स और माली बदउनवानी के इल्जामात के बावजूद शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के नामवर तरीन सियासतदान हैं। बहैसियत नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस वक्त सुस्त रवि का शिकार मईशत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से निपटने जैसे कई मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बिल्कुल पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए वज़ीर-ए-आज़म का ताज कांटों भरा होगा। सुस्त मईशत, हिंद पाक ताल्लुकात, पाक अमेरिका ताल्लुकात, हुकूमत और फौज के बीच रिश्ता और बढ़ती हुई महंगाई से निपटना शहबाज शरीफ के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। देखिए। तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान को शिकस्त देने के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं, लेकिन ये तख्त शहबाज शरीफ के लिए कांटों से भरा होगा। जिस बढ़ती महंगाई और डूबती मईशत को लेकर अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोला था, उससे निमटना शहबाज के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। आइए जानते हैं आखिर शहबाज शरीफ के सामने कौन से 5 बड़े चैलेंजेस हैं। शहबाज शरीफ जब कुर्सी संभालेंगे तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज बढ़ती हुई महंगाई से निमटना होगा। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई संगीन शक्ल इख्तियार करती जा रही है। महंगाई का असर बेशतर अफराद पर साफ नजर आ रहा है। यहाँ खाना पीना महंगा होता जा रहा है। कुछ अशिया आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। ऐसी सूरत हाल में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाना शहबाज के लिए सबसे बड़ा टास्क होगा। पाकिस्तान की मईशत मुसलसल पटरी से उतर रही है। मुल्क पर कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस महाज पर भी शहबाज शरीफ का इम्तिहान सख्त है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हफ्तावार बुनियादों पर
6.04% कम हो रहे हैं। यकम अप्रैल 2022 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $1131 मिलियन के ज़र मुबादला के ज़खायर थे। ये रिजर्व 26 जून 2020 के बाद से कम तरीन सतह पर आ गया है। शहबाज को डॉलर के मुकाबले में गिरते हुए पाकिस्तानी रुपये को भी उठाना होगा। इस वक्त पाकिस्तानी रुपये की कीमत $1 के मुकाबले में 191 रुपए है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2022 की दूसरी छमाही के दौरान पाकिस्तान का कुल कर्जा 5,272 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद है। शहबाज शरीफ के लिए इन तमाम मसाइल पर काबू पाना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ इमरान खान के दौर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात इंतहाई खराब रहे हैं। इमरान के दौर में उनकी बयानबाजी की वजह से हिंद पाक ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे। शहबाज के सामने चैलेंज ये होगा कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को पहले की तरह कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ हमेशा हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हामी रहे हैं। ख्याल किया जा रहा है कि शहबाज हिंदुस्तान से मुज़ाकरात की कोशिश कर सकते हैं। एक जमाने में पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर थे, लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में हालात बहुत बदल चुके हैं और अब दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई खराबी के दौर में हैं। अमेरिका अब पाकिस्तान की माली मदद नहीं करता। रही सही कसर इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए निकाल दी। इमरान खान ने अमेरिका पर अपने खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी थी। ऐसे में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को दोबारा पहले जैसा बनाने का चैलेंज शहबाज के सामने होगा। शहबाज शरीफ के सामने एक मसला फौज के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने का भी है। दरहकीकत शहबाज शरीफ जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसका फौज के साथ रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। जब भी उनके भाई नवाज शरीफ इस पार्टी की तरफ से वजीर आजम रहे तो फौज के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ। फौज और हुकूमत के दरमियान हमेशा तसादुम होता रहा है। ऐसे में शहबाज शरीफ के सामने फौज से ताल्लुकात बेहतर करने का चैलेंज भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम बनने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश की है। हिंदुस्तान ताल्लुकात में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाकायदा मुबारकबाद दी है और कहा है कि हिंदुस्तान ताल्लुकात में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब हुए हैं शहबाज शरीफ, जिसके बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है और कहा है कि हिंदुस्तान ताल्लुकात में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। तो अब से कुछ देर पहले ही शहबाज शरीफ ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है, जिसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश की है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ताल्लुकात में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, क्योंकि ओहदे और राजदारी का हलफ उठाने से पहले शहबाज शरीफ ने बयान दिया था जिसमें हिंदुस्तान से ताल्लुकात का जिक्र किया था। अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश की है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी हिंदुस्तान ताल्लुकात में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, बाकायदा इसका जिक्र किया है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर ने वर्चुअल मीटिंग में एक दूसरे से मुलाकात की। इस दौरान यूक्रेन के बहरान के अलावा जनूबी एशिया की तरक्की, इंडो पैसिफिक की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर बातचीत हुई। अमेरिकी सदर बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट में यूक्रेन के मौजू पर तफसील से बात हुई है। हमने बूचा में शहरियों के कत्लेआम की मजम्मत की और मामले की मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मसला बातचीत के जरिए हल हो जाएगा। Same concerns about the global challenges we face with COVID-19, advancing health security and tracking the climate crisis, and we share a strong and growing major defense partnership. At the root of our partnership is a deep connection between our people,
ties of family, of friendship, and of shared values. On that note, I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault, including a tragic shelling on a train station last week that killed dozens of innocent children and women and civilians attempting to flee the violence. मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। हिंद अमेरिका के दरमियान 2+2 मुज़ाकरात में शरीक होने के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वाशिंगटन पहुंचे। यहां पेंटागन में एक एजाजी तकरीब में अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने राजनाथ सिंह का शानदार इस्तकबाल किया। दोनों लीडरों के दरमियान अलहदा से बाहिमी उमूर पर बातचीत हुई, जिसमें दिफाई टेक्नोलॉजी ताउन, दोनों मुल्कों की फौजों के बीच ताल्लुकात और सलाहियत साजी पर भी बातचीत हुई। हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा ने रूस और चीन पर राज तबसरा नहीं किया, ताहम हिंद अमेरिका 2+2 मुज़ाकरात को दोनों मुल्कों के लिए एक संग मील करार दिया। फ्रांस में नए मुल्की सदर के इंतखाब के लिए पहले मरहले की रायदही में किसी भी उम्मीदवार को वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं हुई, जिसके बाद 24 अप्रैल को होने वाले सदारती इंतखाबात में सदर एमनुअल मैक्रों और मैरिन लेपेन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। मैक्रों का कहना है कि आइंदा 2 हफ्ते फ्रांस के लिए फैसला कुन होंगे। फ्रांस में इतवार के रोज होने वाली वोटिंग के पहले मरहले में सदर इमानुएल मैक्रोन और इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मारीन लेपेन ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। एग्जिट पोल के नतायज के मुताबिक ओहदे सदारत के लिए 12 उम्मीदवारों में ये दोनों सरे फहरिस्त रहे और अब फ्रांस के अगले सदर के ओहदे के लिए इन दोनों के दरमियान ही असल मुकाबला होगा। मैक्रों का मौजूदा दौरे इख्तदार उतार चढ़ाव का शिकार रहा है। सन 2018 में नाम नेहाद येलो वेस्ट एहतजाजी तहरीक का जन्म मैक्रों की कारोबार दोस्त पॉलिसियों और अमीरों के लिए टैक्सों में कटौती के नतीजे में हुआ। अपने दौरे इख्तदार के इख्तितामी मरहले के दौरान भी उन्हें राय अम्मा के जायजों में बरतरी हासिल है। 2 हफ्ते कबल तक मैक्रों ने रिवायती इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो देने के बजाय नुमाया तौर पर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को रुकवाने के लिए सफारती कोशिशों को तरजीह दे रखी थी। मैक्रों की हरीफ दाएं बाजू की रहनुमा मारीन लेपेन है। उन्होंने सन 2017 के सदारती इंतखाबात में भी मुकाबला किया था। मैक्रों के बरक्स मारीन लेपेन मुल्क में महंगाई और आमदनी पर तवज्जो मरकूज करते हुए कई महीनों से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। लेपेन ने अवामी मकामात पर मुस्लिम ख्वातीन के स्कार्फ पहनने पर पाबंदी के हक में बयान देकर भी तनाज़ा पैदा कर दिया था। वो हलाल गोश्त से भी निजात हासिल करने के हक में है। उन्होंने यूरोप के बाहर से मुहाजिरत को कम करने के हवाले से भी मुहिम चलाई थी। फ्रांस में सदारती इलेक्शन का अगला और दूसरा दौर इतवार 24 अप्रैल को होगा। इस इंतखाब के लिए 48.7 मिलियन राय दहंदगान ने अपने नाम इंदराज कराए हैं, लेकिन ये देखना बाकी है कि आया दूसरे दौर में वोटरों की शराकत में इजाफा होगा या नहीं। अगले चंद हफ्तों के दौरान उम्मीदवार और बिलखुसूस मैक्रों जोरदार मुहिम चलाएंगे, क्योंकि वो दूसरी मर्तबा ओहदे सदारत पर फायज होना चाहते हैं। इतवार के रोज जारी आदादो शुमार से अंदाजा होता है कि दूसरे दौर काफी कांटे का रहेगा। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसी का कहना है कि मैक्रों को 51%, जबकि लेपेन को 49% वोट मिल सकते हैं। एक दूसरी एजेंसी एला बे ग्रुप के मुताबिक मैक्रों को
52% और लेपेन को 48% वोट मिलने की तवक्को है। मैक्रों ने शहरियों से दाएं बाजू के उम्मीदवार को शिकस्त देने की अपील करते हुए कहा, पहले दौर की वोटिंग के बाद अभी कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। वहीं उनकी हरीफ लेपेन ने कहा कि सदारती इलेक्शन का दूसरा दौर वोटरों को मुस्तकबिल के लिए दो मुखालिफ नजरियात में से इंतखाब करने का मौका फराहम करेगा। इस इंतखाब में यूक्रेन की जंग में फ्रांस का रद्द अमल, 2 साल से कोरोना के आलमी वबा के नतीजे में सेहत आम्मा के निज़ाम पर बढ़ने वाला दबाव और माशी मामलात फ्रांसीसी वोटरों के लिए अहम तरीन मौज़ूआत हैं। इसके अलावा तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफा अहम तरीन मौज़ूआत में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूक्रेन के सदर ने जनूबी कोरिया से अपील की है कि वो इसे हथियारों की फराहमी करे ताकि रूसी हमले के खिलाफ दिफा में मदद मिल सके। ज़ेलेंस्की जनूबी कोरिया के कानून साजों से वीडियो खिताब में बातें कही। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।